after what Dr. Venkatesh has spoken, I feel very belittled that I cannot match his erudition and also the content he has provided, the insights into the legal or the history of constitution framing into the India, and so many other things. I'm extremely honored to be among these authors gathering. We are very illustrious academics who have proved themselves in their fruit. I am not in the academics. I have been a bureaucrat in my life. Later on, tried to go in for conflict resolutions, dispute resolutions, and all. And also getting into issues which is very, very important, flagging them, because all the political party, I'm not blaming any one of them, could peddle an agenda using the same annals of the Constitution to propagate a myth, propagate a falsehood, and again get away with that. Having said that, for that, we have lost a lot many things over the period of aligned rulers, whether it is 60, there are many historians, in fact, they dominated the entire listener group are being dominated by historians, and I'm sure they would at many places agree with it. Swadharma civilization. At the outset, I will also begin with saying that it would be an injustice to be speaking on Swabhasha if I don't speak in our own Bhasha, so I would be intermittently speaking in Hindi also, and I seek your permission for that. Having said that, the first casualty in any civilizational assault is the language. Now, we had my previous speaker, Dr. Venkatesh, making an observation or recalling an observation from Gandhiji that his illiterate but wise mother, this was a reference he made. So that is the bogey we have to confront. That is the bogey which has been introduced through our foreign rule or aligned rule over a period of years, that we have got dogmatized with these type of terms, that a person who is unlettered in certain English or certain particular language is illiterate, notwithstanding the amount of wisdom or the knowledge they may possess. And that is one of the first, that is the reason I said that was the first casualty which hurt our civilization. And that casualty we are still suffering till today. The craving for the English schools, the convent schools, that the enforcing the child to speak only in English at home, the extreme craving for English communication skills, etc., are a fallout of the attack which we have suffered on the civilizational front over the several years of foreign rules, and how it happened. For that, I will put it in this part. पहले तो मैं आपको यह समझाऊंगा कि हमारी जो भाषा की जो विरासत थी, हमारी भाषा की जो पीछे से जो हमारी जो मिली है संस्कृत भाषा से, जो मूल रूप से जब वेंकटेश जी कह रहे थे कि अगर यूरोप में हम होते तो असम वाले और पंजाब वाला अलग अलग राष्ट्र के होते, परंतु आज हम सब भारतीय हैं, ये बात सही है। परंतु हमारे भारतीयता को बांधने के लिए सिर्फ एक राज्य का ही नहीं है, मूल रूप से हमारी एक भाषा भी, स्वभाषा भी एक मूल रूप से एक बहुत बड़ी बिंदु है, एक बहुत बड़ी सूत्रधार है। इस सारी सभी भाषाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे संस्कृत भाषा में एक क्लस्टर होती है, एक कुछ शब्दों का एक तरीके से प्रणाली, एक वो आती है, प्रणाली टाइप आती है, एक तरीके का क्लस्टर टाइप आती है, गुच्छा टाइप निकल के आता है। जैसे व्यय हुआ, व्यय का मतलब इनपुट, इन्वेस्टमेंट वगैरह, रिसोर्सेस, वही व्यवहारा क्या होता है, व्यवहारा मतलब
व्यवहार मतलब जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, ये भी वहीं से आ गया। व्याकरण रूल्स हो गया, व्यवसाय ऑक्यूपेशन हो गया, व्यायाम है वर्क हो गया, वर्क से लेता हुआ कारण हो गया। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट, ही डज कॉज इफेक्ट एंड ऑल। उसको संस्कृत में पूर्व ओरिजिनली हमें इतना अलग अलग से कॉन्सेप्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। शुरू में कर्णम कारणम कर्ता, कर्णम कारणम कर्ता, कॉज इफेक्ट एंड द डूअर, कॉज इफेक्ट एंड द डियर एलिमेंट। ऐसे इस मूल रूप से हमारे, अच्छा ये कर्णम कारणम कितना आप भिन्न 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 भाषाओं में भारत के जो भी संस्कृत के मूल रूप से आते हैं, और हमारे जितने भी सिविलाइजेशन लैंग्वेजेस जितने भी हैं 12 15 16 अन्य डायलेक्ट्स हैं, सब में कर्णम कारणम कर्ता लगभग एक ही अर्थ देती है। आप लोग बैठे हैं, आप लोग कई अलग अलग मातृभाषा बोलते होंगे, कैन यू काइंडली एक्सप्लेन कि ये एम ए राइट दैट कर्णम कारणम कर्ता ये तीनों अलग अलग, ये सारे भाषाओं में एक ही मूल रूप से है। इस स्वभाषा को हमने चेंज किया और रिटर्न, आज जैसे गांधी जी को कहना पड़ा कि इलिटरेट बट वाइस मदर, तो वही उदाहरण लेते हुए कर्णम कारणम कर्ता का आ जाता है। कार्य क्या होता है? कार्य हर भाषा में कार्य करण कर्म वगैरह जो है ना, ये वर्क को डिटरमिन करता है। कार्य वर्क को करता है, कृत कार्य करना जो भी है। हम बच्चे को घर में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, फिजिक्स में 8th क्लास में क्या पढ़ाता है? वर्क डन इज दिस दिस दिस, और वहां पर कार्य करने के लिए क्षमता शक्ति वगैरह होती है। वही चीज फिजिक्स में स्कूल में पढ़ के बच्चा पढ़ के आता है, एनर्जी क्षमता शक्ति वगैरह। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इन दोनों में कोई फर्क है? परंतु जब आठवें क्लास का बच्चे को वो सोचता है ये कार्य करना जो घर में है ये अलग चीज है, वो जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है उसमें एक छोटा सा बॉडी होती है, मैटर होता है, वो मैटर मूव करता है, तो उसमें फोर्स इंटू जो भी आता है वो हो जाता है। उसको हम बोलते हैं भाई वही कार्य ये कार्य दोनों इंटीग्रेट करके पढ़ेगा तो अपना अपना जो सिविलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझेगा। ये एक उदाहरण नहीं, कई कई उदाहरण है। अगर घर में विशेष रूप से मातृभाषा में अगर हम एजुकेट कर रहे हैं, मातृभाषा घर में प्रयोग करें, जब तक वो सिविलाइजेशनल वैल्यू तभी आएगी। और मेरी माँ या गांधी जी की माँ जिनको इलिटरेट कहा जाता है, उन्होंने अपने विजडम कहाँ से लाया? क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी, कार्य रूप था, उनका प्रशिक्षण जो घर में हुआ था, वो किसी भी संदर्भ में हो वो मातृभाषा में हुआ था। इसलिए वो विजडम अपने सूक्ष्म ज्ञान है, वो विजडम अपने आप आती है। ये एक स्वभाषा का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। न केवल मातृभाषा, जो अपने भाषा में बोले उसमें। परंतु ये ऐसा नहीं हुआ, भिन्न भिन्न कार्यकाल में भिन्न भिन्न तरीके से इस मातृभाषा में ही प्रताड़ हुआ है, प्रहार हुआ है, प्रहार हुआ है। और हमारी भाषा की कई मूल रूपताएं, अब संस्कृत को ही देख ले तो समय कृत है, अच्छा काम करने के लिए जो करने के लिए वो संस्कृत है, संकृत है, अच्छे काम कर, जो संस्कृत में होता है वो काम अच्छा ही होता है। ये दोनों मीनिंग्स हैं संस्कृत की, भाषा की ऐसा है। दैट इज इट relates to your activity, it relates to your method of activity, samayasya krita, right way, doing the right way, getting the right result, दोनों doing है, तो both of them relate to an activity. That is what is the essence of our, and that is the basis at which the entire Indian languages are premised on. That is the entire Indian language, whether it is Orissa, Assami, or Himachali, or a Sanskrit, Kashmiri, or a Hindi, or a Marathi, or a Gujarati, or a Tamil. Why I am saying this? Siddhi. गण इति, गणित है ना, गणित जानते हैं सब, गण मतलब होते हैं। आप किसी भी भगवान को कॉन्सेप्चुअलाइज करें, गण से ईशा क्या होता है? मतलब गण मतलब लॉजिक। अभी तो गणित आ रहा है ना,
Mathematics is the purest form of logic. गण इति गणिता है, गण से ईशा गणिता गणेशा। आपने भगवान देखा होगा बहुत बड़ा मुंबई में सिद्धि विनायक है ना। गण है मतलब लॉजिक का लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लॉजिक, यही हुआ ना गण से ईशा। ये लॉजिक और अ पोस्टुलेट, हाउ इज इट वैलिडेटेड, उसको क्या बोल रहे हैं, सिद्ध करना बोलते हैं या नहीं। तो ये क्या हुआ, सिद्धि गणेशा, सिद्धि प्रूवन लॉजिक। हाउ डू यू वैलिडेट अ लॉजिक, थ्रू ईदर सिद्धि डेरिवेशन करके। So the distance moved between this, acceleration is this, so force is the mass into acceleration, ऐसे प्रूव है, वो डेरिवेशन होता है, इक्वेशन, वही तो सिद्ध करना होता है। तो इस तरीके से मूल रूप से हर भाषा में सिद्धि एन अकम्प्लिशमेंट, a proof or whatever it is, achievement, whatever it is, very well same meaning in all the languages of the country. And वही वो हमारा स्वभाषा का मूल रूप है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, और हमें ये बहुत जरूरी तरीके से बोलना चाहिए। विश्व, पूरे सारे हिंदुस्तानी भाषा, सारे भारतीय भाषा जो भारतीय मूल रूप से हैं, विश्व का मतलब यूनिवर्सल होता है, विश्व प्रिय, सर्व प्रहरा, कहते हैं हर भाषा का जो मूल होता है वो विश्व ही होता है ना। तो इसको भी ऐसे ही हम बोलते हैं। बट एंड दिस वर ऑल व्हेन जब कॉन्स्टिट्यूशन बैठने असेंबली ने जब लिया था, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये ली गई थी कि वी रिक्वायर टू रिकैप्चर द स्वाधीनता, टू रिकैप्चर द स्पिरिट ऑफ आजादी, आवर लैंग्वेज शुड बी based, our common language or an official language of the union shall be, जो आर्टिकल 343 में कहा गया था कि the language of this. परंतु उसके बाद भी क्योंकि सहमति नहीं थी सारे देश, सारे भारतवासियों में, क्योंकि वो भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जा चुके थे, उसका कारण वर्ष क्या था कि उनके पीछे के कई प्रहार में ऐसे जो शब्द आ गए जो पर्शी और अन्य रूप से थे, अन्य लैंग्वेजेस से इंपोर्ट किए गए थे। मेनी लैंग्वेजेस लाइक पर्शिया, लाइक गुमास्ता। पुराने जमाने में लिपिक होता था, लिपिक वाज द नेम फॉर द गुमास्ता, बट पर्शियन गुमास्ता के, गुमास्ता जब कोर्ट में जाते जाते आमलतदार हो गया, श्रेष्ठदार हो गया, पता नहीं क्या क्या दार हो गया, मगर लिपिक तक वापस नहीं आया। लिपि और लिपिक was the original term for. I'm just giving you these examples so that you can understand what is the essence of Swabhasha. Article 343 had to say that of course English will continue as a linked language or whatever it is. Article 344 to 351, there are several other provisions relating to how the language. 348 again says the language of the High Court and Supreme Court shall be English, excepting certain procedures through which, I'm not exactly capturing the procedures through which this can be changed or adapted with the approval of the governor, president वगैरह वगैरह, काफी कुछ provisions। तो उस वजह से आज भी हमको जो पर्शियन कोर्ट के या मुगल कोर्ट के लैंग्वेज आज भी यूज हो रहा है। हलफनामा बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं ना। Why can't that be वचन पत्र? वचन पत्र, why should there be a हलफनामा in it? The affidavit should be called. So ये सब चीज हम मुगल कोर्ट से या उससे पहले से लेते आ रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन्होंने भी उसी को कंटिन्यू किया। एफिडेविट, अमलदार, वचन पत्र, श्रेष्ठदार, या जो भी आपका टर्मिनोलॉजी। वचन पत्र हो सकता है, लिपिक होता है, न्याय लिपिक हो सकता है, मुख्य लिपिक हो सकता है, कई तरीके से उनके पास टर्मिनोलॉजी। हमारे लिपिक अगर टर्मिनोलॉजी आ जाए तो पूरे भारत के हर कोने में किसी को कोई भी शंका नहीं होगी, संदेह नहीं होगा कि लिपिक क्या चीज है। सबको पता है लिपिक मीन क्लर्क।
और लिपिक आज का नहीं है, पुराने जमाने का प्रतिवाद है। आप लोग तो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी लिपिक प्रतिवेदा वगैरह रखे। ये तो आपका हिस्ट्री स्टूडेंट्स ही, यू मस्ट बी नोइंग इट वेरी। तो वही आई एम सेइंग, ये जो स्वभाषा का जो तात्पर्य है, स्वभाषा को इस तरीके से आधार पे लाया जाए, और इसके अंदर काफी जो आज की जो इवन हिंदी को तत्कालीन राजनेता लोगों ने एक रूप देने के लिए हिंदुस्तानी के बताया है, जो एक डिस्टॉर्शन है। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ हिंदी के हिस्ट्री के मैक्सिमम श्रोता है। इस श्रोतावाद को मेरे से ज्यादा उनको संज्ञान होगा कि इतिहासा में 10 इंडीड हैपेंड। आपके हिस्ट्री के किताबों में यही कैप्चर हुआ है क्या? क्या हुआ है वो आई थिंक प्रियतोष जी तो मेरे से अच्छी तरह संज्ञान है, इनको ज्ञात है कि इतिहासा मतलब 10 इंडीड इट हैपेंड, बट व्हाट इज रिटन इन अवर हिस्ट्री बुक्स इज एनीथिंग बट व्हाट हैज हैपेंड। ये तो आप एक एक करके बाहर आ रहा है। इससे भी हमारा स्वाधीनता के न केवल मॉडर्न पीरियड के पीछे वाले पीरियड में भी कई जगह आपको, मुगल पीरियड में भी आपको कई जगह ऐसे हिसाब से दिया जाता है जहां सत्य से कुछ अलग है। मैं इस चीज में रुचि मेरे को इसलिए आई थी कि आज का जो इवेंट्स है, टुडेज इवेंट्स आर टुमारोज हिस्ट्री, and in certain stage of your recent political acts, a particular falsehood was sought to be provided and recorded, brought into the record, so that tomorrow everybody will say Hindus were militants, Hindus were terrorists. I have stood against that. So that is one of the reasons that triggered me, because the Hindu terror nowadays it has been validated by the court, but that would not have got into the history books of 2035. It would have simply said that Hindus were terrorists, they were found doing militancy work. From there, I picked up the thread that there are many distortions which has happened. That is the reason I keep on saying I look for the meaning of Hindu itihasa. Thus, indeed, it happened, and that should only be recorded. और ये स्वाधीनता के लिए नहीं, हिस्ट्री is the foundations of the future. Recorded history should be correct so that your futures are bright. Because it is a single line, सनातन धर्मा से लेके वो कहते हैं ना, भारतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिणे पार्श्वे, जो वेंकटेश जी ने बोला, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। भारतवर्षे भरतखंडे, जितना आपका व्यवहारिक षष्ठी संवत्सराणाम वगैरह सब कुछ उसका, आप मेरे से ज्यादा संज्ञानित है तो आपको पता है। ये मैं यही चीज मैं लाने के लिए आई ब्रॉट दिस। और इस हिसाब से आप देखिए, लिपिका, मुख्य लिपिका, हर तुम्हारी कोर्ट के भाषा में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एक सूत्रधार से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के एक एक राज्य में इसका कॉमनैलिटी हो। एक तो अगर आप गुमास्ता बोलेंगे, कहीं श्रेष्ठदार बोलेगा, कहीं अमलतदार बोलेगा, कहीं पट्टादार बोलेगा, तो ऐसे इसको भी साथ साथ हमें आगे लेके जाना। स्वभाषा में हमारे सूत्रधारी भाषा का सबका मूल रूप समयकृत है, संस्कृत से है। संस्कृत से व्याकरण, सिद्धा, कारणा, इवन आपके एजुकेशन सिस्टम में भी आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि कर्म, कार्य, करण, कृता, कॉज एंड इफेक्ट आ गया। करणम कारणम कृत्वा, कॉज एंड इफेक्ट, एंड द एलिमेंट which has triggered this। क्योंकि कल को हमें पीछे हम सुनामी में भी आ चुके हैं, उसका भी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड 30 साल बाद होगा। जैसे बंगाल प्लेग का आज हम पढ़ते हैं, आज से 30 साल बाद बच्चे सुनामी का पढ़ेंगे या कुछ और का पढ़ेंगे, तो उसका सच्चाई जो सत्य तरीके से सुनामी का कारण क्या है। राम राज्य के बारे में वेंकटेश जी ने मेरे से पूर्व होता है, उन्होंने ये कहा था कि राम राज्य में ऐसा ऐसा एनवायरमेंटल नेचुरल डिजास्टर्स नहीं हुए, परंतु हमें नहीं पता कि हम कितना आगे प्रताड़ करेंगे, कितना प्रहार करेंगे। तो परंतु सर्व प्रहार जो भी होता है उसका विकल्प, उसको रिकॉर्ड रख के कि दिस इज द रीजन, दिस इज द एलिमेंट विच कॉज्ड द नेचुरल डिजास्टर। इस तरीके से आजकल तो बहुत अच्छा सिमुलेशंस आ गए हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स आ गए हैं,
देखो बॉडी ऑफ नॉलेज तो हमेशा ही बढ़ता रहा है, हमारे से 50 पीढ़ी पहले जितनी थी। ये सत्य है कि उनके पास पूंजी थी। आदरणीय कुमार जी मेरे से अपना अनुभव से बता सकते हैं कि कैसे एक नॉलेज का एक तरीके से, बिकॉज ये स्वभाषी में बोल रहा हूँ कि नॉलेज को कैसे गुरुकुल तरीके से पढ़ाया जाए, हमारी ये स्टीरियोटाइप इलिटरेसी का। क्योंकि मुझे एक और बड़े अच्छे प्रोफेसर लॉ के सिंगापुर में, वो फॉर्मर जज रहे हैं, लेस्ली चौ है, चाइनीज है। उन्होंने एक बार बोला था कि पाइथागोरस वाज अ फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन एंड ऑल दिस, दैट इज व्हाट इज नॉलेज इज, नॉट दिस डिपार्टमेंटलाइजेशन, डोमिनाइजेशन, डिसिप्लिनराइजेशन एंड ऑल दैट। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था किसी संदर्भ में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हमने स्वाधीनता के, हमने जो इनहेरिट किया है, हमें जो आगे से इनहेरिट हुआ है कि भाई फिजिक्स पढ़ने वाला इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानता, इकोनॉमिक्स वाला जो है लॉ का स्टूडेंट को उसके कुछ नहीं पता। ये पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, हर चीज विद्या अविद्या दो ही होती थी। विद्या में या अक्षर अभ्यास हो या निरक्षर हो, अनलिटरेड हो, या अक्षर अपने ही भाषा का अक्षर लेने वाले को आज भी अंग्रेजी में इलिटरेट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या कई बार हम बोल जाते हैं ये तो इसको तो अंग्रेजी नहीं आती, ये नहीं पता होगा। बोलना आता है, ये उसका जुबान, उसकी वाक, उसकी वाणी, उसके ऊपर उसके जो वाणी की शक्ति हो सकती है, उसके ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है। हम कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता, जैसे अंग्रेजी पढ़ने वाला साक्षरता हो, बाकी सब जो है इलिटरेट। ये जो तात्पर्य घुसे, इन सब चीजों से बाहर आने के लिए स्वभाषी के ऊपर हमें एम्फेसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। और इससे क्या, न केवल हमारा जो पुरुषार्थ वगैरह सब कुछ ठीक है, हमारे सिविलाइजेशनल गोल्स के साथ दिस विल अलाइन इटसेल्फ विद आवर ओन सिविलाइजेशन गोल्स। और स्वधर्म, स्वभाषा एंड इवन जीवन शैली तक, the lifestyles will be better affected if you can take out this, integrate this into our swadharma, आत्मनिर्भरता, everything। आज संस्कृत या प्राकृतिक के व्याकरणों से, अष्टाध्यायी, पणिनि अष्टाध्यायी से कई जगह, ये मैं नहीं कह रहा, कई बार रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा है कि बेस्ट ऑफ द आईटी सॉल्यूशंस, कोडिंग वगैरह पे अष्टाध्यायी का जो सिद्धांत है, पणिनि का अष्टाध्यायी है, ग्रामर का बेस्ट है, हाउ टू डू द एप्लीकेशन। व्याकरण मीन्स ओनली एनालिसिस एंड सिंथेसिस। हम ग्रामर में भी यही लगभग करते हैं कि एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस। तो उसके रूल्स ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस है, व्हाट इज अ प्रोपोजिशन, व्हाट इज अ धातु, धातुवाचा, क्रियावाचा एंड ऑल दैट। सो वही चीज आज हम मॉडर्न रेनन मार्टिन में भी पढ़ रहे हैं, आपस्तंभ में भी यही कई चीजें लिखा हुआ है। परंतु अगेन द रूट कॉजेस, वी नीड टू rediscover that, invent नहीं, rediscover that, integrate into our own swadharma, swadhinata and swadharma, swadhinata into that and take it as a holistic package। नहीं तो क्या ये डिसजॉइंटेड चीज रहेगा? अगर फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 343 से लेके 351 तक जो भी हुआ है, उसके आधार पर ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी बनी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशंस बने हैं, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह सब कुछ है, मगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा समिति तक रह जाती है। और आज भी आप सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में जाएंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे है, अच्छा लीगल टर्मिनोलॉजी के लिए वो लॉ मिनिस्ट्री के अदर है, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर लीगल टर्मिनोलॉजी अलग डिवीजन है। सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में जाएंगे, वो कहेंगे तो उनका जो मूल रूपता जो है वो वही पर्सन मूल सही होता है। क्लर्क को गुमास्ता ही कहेंगे, क्लर्क को अभी उनके जुबान से लिपि नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कल्चरली ऐसे हो चुके हैं। बार बार हमारे शिक्षा शैली जो मकैल है या उससे पहले जो मुगली शिक्षा शैली थी, गुरुकुल से हटते हटते हम यहाँ आ गए हैं। इसको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, इसको हमारे लैंग्वेज को, इवन दी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स में भी, जैसे मैंने बोला एफिडेविट को हलफनामा क्यों कहे, एफिडेविट को वचन पत्र क्यों नहीं कहे, ऐसे कई
बिंदु है। मैं समय सीमा को आदर करते हुए मैं यहीं पे समेटता हूं। जय भारत। थैंक यू। Thank you, sir, for telling us and the reason and the issues why we should have a नेटिव लैंग्वेज। बात यह है कि जो हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं और जिस तरह से उस तरह से समझा सकते हैं किसी अगले, जो बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है, तो दैट्स अ इशू which has been discussed here, and I'm thankful to Mani sir